नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। व्हाट अ लवली ब्लू प्रदीप जी, जैकेट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, वाओ वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल वंडरफुल। तो प्रदीप जी और मैं, हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ, यू वाचिंग द आरकेबी शो ऑन नेशन नाउ एंड आप सब लोगों को नेशन नाउ की तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, in Chinese, ni hao, in Japanese, konnichiwa, and of course, bonsoir in French. Pradeep ji. Habari yako jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. So, Pradeep ji, Sonia ji said that by the end of the presidential address to the two houses, the United Address, she says she must have been very, very tired, poor lady. That's what she said, and that has drawn a lot of flack from a lot of people. In fact, when President Murmu was made president, even at that time, Sonia ji has said that President Draupadi Murmu is a very, very nice lady, very decent, very well educated, and we are all very proud of her, but she represents an evil philosophy. That's what she said. I don't know, I mean, this thing is drawing a lot of flack towards the poor Sonia thing Gandhi. has got a lot of, in fact, Prime Minister Modi has lashed out at her. In fact, the entire BJP has lashed out at her. बोले कि जरूरत क्या था? What is the poor thing about? You're still stuck to your own feudal mindset कि गरीब लोग, you know, they've come back to the whole thing. The BJP tried to highlight the very fact that क्या गरीब, पिछड़े, दलित होना गुनाह है? क्या उनका शैली, उनके भाषा, उनके तौर तरीके इनको अच्छा नहीं लगता है? So she is again aristocratic, very wealthy background, और जो high background से आते हैं उस चीज को वापस दोहराया है कि you look upon people, you look down upon people who come from a poor background, a Dalit background. That's right. And she's a tribal, Adivasi. So it's called BJP wanted what they got, and Sonia Gandhi gave it very easily. That's right. And forgetting the fact that Sonia Gandhi, by the way, herself, if you actually look at Sonia ji's background, I agree, she got married into the Gandhi family, लेकिन उसके पहले she was a working woman. Yes. They didn't have enough money. Correct. So Sonia Gandhi, in fact, has worked all her life. All her life. And after that, of course, she was the wife of an airlines pilot. Yes. And एक और भी चीज़ अगर सोनिया गांधी के बारे में अगर आप सुनना चाहें तो बता दूं प्रदीप जी? अभी फिर वो चलिए जाने दीजिए, कोई बात नहीं। क्या है कि वो स्टोरी मेरी थी, इसलिए बोल रहा हूँ 1983 की बात है, वो भी स्टोरी मेरी थी। चलिए हमारे गेस्ट जब ज्वाइन करेंगे तब बताऊंगा। बट बाय द वे आई एडमायर सोनिया गांधी ग्रेटली, आई एम बिग फैन ऑफ हर्स। क्या है कि सोनिया गांधी जी की राष्ट्रभक्ति के ऊपर मुझे लगता है कोई सवाल उठा नहीं सकता है, क्योंकि ना जाने कितनी मर्तबा ये कहा गया कि सोनिया गांधी जो है भाग करके इटली वापस चली जाएंगी, ये भूलते हुए कि उन्होंने ज्यादा साल भारत में बिताए हैं इटली के बनस्पत। इटली तो उन्होंने छोड़ दिया था 18-19 साल की उम्र में, आज तक वो भारत में है, हमारी बहू हैं। और राजीव गांधी जी की पत्नी है, राजीव गांधी तो हमारे बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे। हम तो आज तक वही बोलते हैं, जब राजीव गांधी जिंदा थे तब मैं सोनिया जी से नहीं मिला हूँ, बाद में मिला। और लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, शी इज वन ऑफ द मोस्ट कर्टियस पीपल आई हैव एवर कम अक्रॉस। बहुत आदर सत्कार सम्मान से बात करती हैं हर एक से। और ज़्यादातर प्रदीप जी मैंने देखा, भले वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, अपने समाजवादी पार्टी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, जितने भी बड़े लीडर हैं, दे आर ऑल वेरी civilized. With that kind of political experience and with kind of courteous nature of hers, she should have been more careful about what she talks. I think there is a deeper game here. This is well thought out, Pradeep ji. ये जान के, मतलब it is not a slip of the tongue. ये जान के कहा गया है, क्योंकि अब आप देखेंगे वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड दोबारा बजना शुरू हो जाएगा। पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन में प्रेसिडेंट मुर्मू को नहीं बुलाया, अयोध्या में प्रेसिडेंट मुर्मू को नहीं बुलाया, हर जगह पे जाकर के, क्योंकि वो आदिवासी हैं, क्योंकि वो महिला हैं, आप उनको नजरअंदाज करते वगैरह वगैरह। ये कांग्रेस भूलेगी अब देखिए अब आगे जाके क्या होगा। सोनिया जी ये कहना चाहता कि मोदी जी के इतने अचीवमेंट भर के बोले हैं कि ये किया वो भी किया, वक्फ भी किया, वो जो बार तो उसके बाद, एंड because of that, reading out the entire achievements of Prime Minister Modi over these, and she must have been very tired. Yes, she got very tired. तो जो भी व्यंग है, but व्यंग प्रॉब्लम सर हिंदुस्तान में व्यंग चलता नहीं,
पीपल ओवर हियर आर वेरी लिटरल, यहाँ पर तो मतलब जो है, जो बोला आपने वो बोला। खैर, एनीवे वील डिस्कस दैट, वील आल्सो डिस्कस व्हाट इज द मेन इशू एज फार एज मुंबई एंड महाराष्ट्र इज कंसर्न। महाराष्ट्र में उम्मीद यह की जा रही है कल का जो बजट है उसमें एक अच्छा पैकेज आएगा, बिकॉज आवर ट्रेजरी इज इन ट्रबल। प्रदीप जी आप भी बिल्कुल जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, बाबा सिद्दीकी के मर्डर को लेकर के लोगों में अभी तक रोष है कि भाई आपने, वो क्या नाम है उसका, द फैंटम, यस क्या है, गोज टू वॉक्स, यस यस, मिस्टर वॉकर यानी लॉरेंस बिश्नोई, उनको अभी तक आपने बात भी नहीं करी उनसे, चार्जशीट में उनका नाम लगा दिया आपने सबसे ऊपर। अरे तो बात तो करो। और जीशान सिद्दीकी बेचारे, मुझे तो अंकल बुलाते हैं सर, एंड ऑफ कोर्स बाबा बीइंग योर फ्रेंड प्रदीप जी, आई एम श्योर व्हेन जीशान मीट यू ही विल कॉल यू अंकल यस आल्सो। यस बिल्कुल। द फैक्ट रिमेन्स, जीशान सिद्दीकी बार बार बोलते बोलते थक गए कि भैया ये 4 बिल्डर हैं, ये बीजेपी के नेता हैं, ये उद्धव ठाकरे सेना के नेता हैं, ये सब लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, कोई इनसे बातें नहीं कर रहा है, विच इज सैड। एंड बीड, प्रदीप जी, दैट बीड हैज बिकम अ थॉर्न इन द साइड ऑफ एवरीबडी। एंड हियर आई वुड से देवेंद्र फडणवीस जी हैज टेकन अ वेरी फर्म स्टैंड। उन्होंने ये कहा कि भाई इसको बोलो रिजाइन करो। अजीत दादा पार नहीं कर रहे, मान नहीं रहे। आई थिंक फाइनली देवेंद्र फडणवीस विल हैव हिज वे। राइट, लेट्स गो अक्रॉस स्ट्रेट टू our guests. We have a very distinguished panel indeed today. काफी दिनों के बाद संजय द्विवेदी जी, उद्धव ठाकरे सेना के। संजय द्विवेदी जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। और नमस्कार नमस्कार। एडवोकेट धनंजय जुनारकर साहब, वो भी बड़े दिनों के बाद। जुनारकर साहब नमस्कार, कांग्रेस से। नमस्कार सर, नमस्कार। जय हिंद, हाउ आर यू सर? ठीक ठाक हैं आप? बस आपका आशीर्वाद सर। अवधूत वाघ साहब, always a pleasure having you on the show. God, I feel so delighted whenever I see him on the show. You know, Avadhoot Wagh Sahab of the BJP is one person who comes out with something new on the show, which is a learning experience for me. I'm being very frank with you. I have very selfish reasons for the fact that I always welcome you on the show, and you always come out with some new fact or the other which I didn't know about, which is fantastic. Avadhoot Wagh Sahab, welcome. I'm very easily provoked by Sharad Pawar ji. Sharad Pawar ji के बारे में बहुत। अब शरद पवार जी तो शरद पवार हैं ही, अब क्या करेंगे उनके बारे में। शरद पवार जैसा कोई पॉलिटिशियन ना पहले आया, ना है, ना आएगा। वो यूनिक है सर, अनोखे हैं वो। तो धनंजय जुनारकर साहब, आपसे शुरू करते हैं। सोनिया जी ने ये क्या कह दिया सर प्रेसिडेंट साहब के बारे में? व्हाई डिड शी हैव टू से दिस प्रेसिडेंट साहब के बारे में? सर क्या क्या जरूरत पड़ गई कि पुअर लेडी, शी मस्ट हैव बीन वेरी टायर्ड बाय द टाइम शी फिनिश्ड, वगैरह वगैरह, क्या है सर जुनारकर साहब? उनकी प्रतिक्रिया एक्चुअली मैंने सुनी नहीं, मैं अभी आया और ज्वाइंट हुआ हूँ शो को जी। तो उनकी क्या बोला मुझे, सोनिया जी ने यह कहा प्रेसिडेंट मुर्मू के बारे में कि मोदी जी की इतनी तारीफ करते करते थक गई होंगी वो, और साथ में एंड में कहा पुअर लेडी, ये भी कह दिया उन्होंने। मतलब in the end she was so tired, so she said poor thing. Yes, she was so tired, poor thing. She was so tired she could hardly speak, poor जी। thing. तो मतलब जो जिन्होंने उनके लिए स्पीच लिख करके दी, प्रेसिडेंट की जो स्पीच होती है, तो सोनिया जी ने ये कहा क्या जरूरत पड़ी? अब क्या है कि बाकी सब लोग, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा अच्छा मौका मिल गया, बाकी सबको बड़ा अच्छा मौका मिल गया, देखिए देखिए ये कॉलोनियल माइंडसेट है, ये है वो है। वैसे कहने की आवश्यकता नहीं थी, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, सोनिया जी की तरफ से। अब आप बोले जुनारकर साहब, आप क्यों ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं? जैसे चलिए, आपने ये नहीं सुना, लेकिन खड़गे जी का जो कथन था वो तो आपने सुना ही होगा ना, महाकुंभ के बारे में। डुबकी लगाने से, महाकुंभ में डुबकी लगाने से क्या गरीबी मिट जाएगी, क्या नौकरियां हो जाएंगी? अरे सनातन धर्म के बारे में आप क्यों इतना उल्टा सीधा बोलते हैं सर? 1957 में जब पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ही टुक पर्सनल इंटरेस्ट along with Govind Ballabh Pant ji, who was the chief minister of UP at that time, to organize the Mahakumbh. तो सर आपको क्या जरूरत पड़ी है ये सब बोलने की? आप क्या क्या दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस जो है वो हिंदू विरोधी है? जुनारकर साहब, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनका बोलने का तात्पर्य ये है कि देश में और भी ज्यादा चीजें हैं जिस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। आप धर्म के नाम पर कष्ट सहने की और बलिदान देने की एक मानसिकता तैयार कर रहे हैं, और उसके माध्यम से आप धार्मिक आयोजनों को सत्ता प्राप्ति का एक साधन समझ के एक इवेंट मैनेजमेंट की ओर जा रहे हैं। तो इसको उनका विरोध है कि आप इस प्रकार से लोगों को अगर कोई अच्छी रास्ते पे लेके जाने का अगर कोई व्यवस्था हो सकती है तो वो कीजिए। आप, सनातन धर्म अपनी जगह है और बिल्कुल सनातन धर्म के ऊपर किसी भी प्रकार का क्रिटिसिज्म कोई भी नहीं करेगा, ना कांग्रेस कर रही है, ना आगे भी जाके करेगी। You know, Junarkar Sahab, as per the BJP and Amit Shah, this decade belongs to Modi. This decade belongs to Modi.
पॉलिसी पैरालिसिस से जिस प्रकार से एक डेवलपमेंट का लहर मोदी साहब ने करके दिखा दिया, मोदी साहब के 10 साल है, 25 साल के नींव बना के रखा है आगे का। Now this is from policy paralysis of Manmohan Singh to actual work, development work that Prime Minister Modi has done. Now फिर वो अमृतकाल का नींव, foundation of अमृतकाल has been set, and this budget is a continuation of that. That is going to happen, the budget session. जुनोरकर साहब, सर ये आप जो बोल रहे हो उसको मैं एक दो लाइन में अलग से प्रकार से बात करता हूं कि तुम्हारी फाइलों में गांवों के मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांवों का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी है। तो जिस प्रकार से आपने बताया कि बहुत कुछ बढ़िया होते जा रहा है, मैं इतना बोल सकता हूं कि हर गवर्नमेंट अपने पिछली वाली गवर्नमेंट से थोड़ा आगे प्रोग्रेस करती है और प्रोग्रेस करना भी चाहिए, उस पर कोई क्रिटिसिज्म की बात नहीं है। आप मनमोहन वाजपेयी जी के माध्यम से जब मनमोहन सिंह को जब गवर्नमेंट करने को मिला था तो उनका उस समय का एनपीए 8% था। 2014 को मनमोहन सिंह चले गए सत्ता से, तब उनका वो एनपीए 4% था। आज 2024 में एनपीए 12% हो गया है। आटा, दही, दवाई, पढ़ाई, पॉपकॉर्न पर सब जगह जीएसटी लगा दिया गया है। पुरानी कारों पर भी 18% जीएसटी लगा दिया गया है। तो आप ये सब देखेंगे कि इसके साथ साथ सोने की बात करूं मैं, 2019 में सोना गिरवी रखकर 25,000 करोड़ रुपया का कर्जा लिया गया, मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल लोगों ने। 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 1.25 लाख करोड़ का हो गया। तो व्यक्ति सोना कब लेता है? जब कोई उसको पैसा देने की, कहीं से आने की उसकी शक्यता खत्म हो जाती है, कहीं लोन नहीं मिल सकता, बहुत ज्यादा तकलीफ में, मतलब इतने लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में कि उनको सोना गिरवी रखना पड़ा। उसमें से 30% कर्जा एनपीए हो गया सोने वाला, तो उसमें से मतलब 40,000 करोड़ का रिपेमेंट हुआ ही नहीं। 3 लाख का आपका जीएसटी संकलन होने वाला था, वो 1.75 करोड़ का ही जीएसटी संकलन हुआ। प्राथमिक शिक्षा में 2019 में विद्यार्थियों की संख्या 2.64 करोड़ थी, जो 2024 में 2.5 करोड़ की हो गई। मतलब 1.5 करोड़ के विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षा से वंचित हो गए, उनको परवड़ ही नहीं रहा। अगर ये अवस्था आज देश की है तो, और उसमें से 80 करोड़ लोग को आप 5 किलो का खाना आप दे रहे हैं, तो आप मुझे बताइए इसको अमृतकाल कैसे बताया जाएगा? जी, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हैं, ये मोदी जी के डेकेड है। कल ही अमित शाह जी ने वो किताब निकाला जिसमें मेंशन है द डेकेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, द डेकेड ऑफ मोदी। इतने अचीवमेंट जो आप एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं, जो एक्सपेंडिचर और जितना खर्चा किया है, दैट इज फॉर डेवलपमेंट। इतना पहले कभी हुआ नहीं था। आंकड़ा दे रहा है कि मनमोहन सिंह के टाइम पर 1.7%, आज 3.7% ऑफ जीडीपी इज बीइंग स्पेंट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। जुनोरकर साहब, ये इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है देश का, पलट हो रहा है देश का इकोनॉमिकली। सर, आरबीआई ने 2024 में 7.5% की जीडीपी की उम्मीद की थी, वो अभी 6.4% से भी कम होने का उनका अनुमान है। सर, इसका असर मध्यम वर्ग और गरीबों पर ज्यादा गिरेगा। आप 2024 में भारत पर कर्ज 440 बिलियन डॉलर था और 2014 में 440 बिलियन डॉलर था। 2024 में सर 711 बिलियन डॉलर हो गया। मतलब 10 सालों में 300 बिलियन डॉलर का हमें कर्ज में हमारी बढ़त हो गई है। तो हर जगह सर इस प्रकार से अगर कर्ज ले रहे हैं और टैक्स टेररिज्म जिस प्रकार से हो रहा है कि हर चीज पे आपको टैक्स भरना पड़ रहा है, तो आप इस कहां जनता को आपने सुख और शांति वाले अच्छे दिन का जो वादा था सर, वो तो हुआ ही नहीं। Right, so there is a problem with regard to jobs. There is no doubt about it. But the fact is, everybody is working. It is not as if people are not working. Let's be very, very clear. As far as Junarkar Sahib is concerned, Junarkar Sahib is from the Congress. तो वो तो कांग्रेस की बात करेंगे. And by the way, that is me speaking. By the way, हमारे प्रोडक्शन टीम मुझे क्यों नहीं दिखा रही है, मुझे मालूम नहीं है. हो सकता है कि सब लोग गुस्सा बैठे हो मेरे से. क्यों बैठे हो मुझे मालूम नहीं है यार. मैंने कुछ नहीं किया भाई. दिखा दिया करो कभी-कभी मुझको भी. तो संजय द्विवेदी साहब, ये बार बार आपके यहाँ से बात आती है. मैं अवधूत वाघ साहब के पास उसके पास जाऊंगा. बार बार ये बात आती है, इतना कर्जा बढ़ गया, इतना ये हो गया. अरे कर्जा बढ़ गया सर, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो कितना बड़ा है. हर जगह पे मेट्रो बन गए, कोस्टल रोड बन रही है, कहां पे हाईवेज बन रही है. सर द्विवेदी साहब, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं. आई यूज्ड टू कवर डिफेंस. डिफेंस इज माई स्पेशलिटी, डिफेंस कवरेज. लेट मी टेल यू दिस. आपको मालूम है, लद्दाख के बाद, लेह के बाद म्यूल ट्रेन जाती थी. म्यूल ट्रेन यानी खच्चरों के ऊपर सामान जाया करता था.
खाना जाया करता था फौजियों के लिए। कहां पर? दोनों जगह पर, लद्दाख में भी और नॉर्थ ईस्ट में भी। आज की तारीख में वहां सड़कें बन गई, सब कुछ बन गई है, राइट टिल द लास्ट पॉइंट। Border village, yes. Right till the last point. The last border village on the border of China has been connected by roads and by rail. आज तक कभी नहीं हुआ। तो सर उसके लिए तो कर्जा लेना ही पड़ेगा ना सर। तो द्विवेदी जी, कर्जा अगर लिया गया है, मानते हैं कर्जा वापस भी करना है, लेकिन कर्जे का इस्तेमाल भी तो हुआ है ना सर। द्विवेदी जी अब आप बताएं प्लीज। राजीव जी, महाकुंभ की मैं बात करूंगा पहले। चलिए महाकुंभ की बात कर लीजिए। श्रद्धालु आप गए सर? आप गए कि नहीं डुबकी लगाने? नहीं, मैं तो अभी नहीं गया हूँ। कब जाएंगे सर? मैं जाऊंगा सर, जाना चाहिए सर। मैं महाकुंभ की बात कर रहा हूँ सर। जी बोलिए सर, बोलिए। पिछले 75 सालों में महाकुंभ हमारे हो रहे हैं। कभी 4 साल होते हैं, मतलब हर साल ऐसी भीड़ आती है जी। लेकिन आज जो दुख का विषय है कि जो भगदड़ में जो हमारे श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है जी, हुई है, वो बहुत दुखद है। शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। 2-2, 3-3 जगह भगदड़ हो रही है और काफी श्रद्धालुओं की कितने हैं तो इसका जानकारी हमको नहीं है। यह जानकारी सही ढंग से जानकारी मिल भी नहीं पा रही है। लेकिन जो मरने वाले श्रद्धालु उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। जो घायल हुए हैं उनकी जल्दी स्वस्थ होने की मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। जी। एक्चुअली इस विषय के बारे में वी वांटेड टू डिस्कस इट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, लेकिन आपने क्योंकि शुरू कर ही दिया है। बोलिए सर, बोलिए। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ जो आपने बात शुरुआत की। जी सर, आप मोदी जी की बात कर रहे हैं साहब कि मोदी जी ने ये रेल चला दी, फलाना चला दिया और इतने कर्ज लेके काम किया। तो जो इससे पहले प्रधानमंत्री सर जो आए थे, या माननीय जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने जब सत्ता ली थी अंग्रेजों से, तो रेलवे लाइन कितनी थी सर? कोयले का इंजन चलता था। कितने मेट्रो बनी थी, कितने उपबांध बने थे, कितने मेडिकल कॉलेज बने थे, कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने थे, कितने IIM बने थे, कितनी IITs बनी थी, या कितनी हमारी PCUs में सार्वजनिक उपक्रम कितने बने थे। यह राष्ट्रीयकरण बैंकों का किया गया क्योंकि बैंकें जो है हमारी, वो जो हमारे आम जनता थी उसको ऋण नहीं देती थी, इसलिए उनका राष्ट्रीयकरण करके आम जनता के लिए बैंकें खोली गई कि साहब उनको भी ऋण मिले, ये कर्जा मिले, जिससे वो अपना व्यापार आगे बढ़ाएं, उसके बाद वापस करें। ऐसी बहुत सी चीजें सर हैं। आज मुझे एक बात बता दीजिए, कौन सी नई चीज आज माननीय मनमोहन सिंह की अगर बात करें तो उन्होंने न्यूक्लियर उसका किया था कि नहीं, एग्जामिन करके देखा था, जबकि अमेरिका मना कर रहा था, सब मना कर रहा था। बांग्लादेश को अलग कराने वाली आयरन लेडी श्रद्धा हमारी इंदिरा गांधी जी है। राजीव गांधी जी ने हमारा जो नेट पे आज हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके जो नेट देख रहे हैं, या जो टिकट हमको मिलती थी, पहले हम बम्बई जाते थे, टिकट नहीं रिटर्न की ले पाते थे, टिकट हमको रिटर्न की उसमें मिलने लगी। तो मैं यही बात कर रहा हूँ आपसे कि माननीय मोदी जी ने 10 सालों में, जैसे कहा जा रहा था, इन्होंने 25 साल काम कर दिया। अरे इन्होंने कुछ IITs बनवा दी होंगी, कुछ रेलवे लाइन साथ बढ़ा दी होगी, कुछ मेडिकल कॉलेज बना दिए होंगे, कुछ नए पुल बना दिए होंगे, लेकिन आज 80-81 करोड़ जनता को ये दे रहे हैं, अगर अनाज दे रहे हैं, उनकी रोजगार के संसाधन उपलब्ध नहीं कराए तो हमारा कैसा हमारा देश है ये। सर दोनों को रिलेट कर गरीबी हटाओ और देश बचाओ की बात की जाती थी, अगर वो बात तुमने करते थे। ये तो गरीबी की बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर अनाज आप बांट रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, 82 करोड़ लोगों को, तो उनके आपने रोजगार की क्या व्यवस्था की? महंगाई कितनी बढ़ गई मोदी जी? महंगाई कितनी बढ़ गई है मोदी जी? आंकड़ा दे रहे, जो एक्सपेंडिचर के आंकड़ा दे रहे हैं कि 74 एयरपोर्ट थे 60 साल में, 10 साल में 150 एयरपोर्ट हो गए। 5 सिटीज में मेट्रो रेल चल रहे थे, आज 21 सिटीज में मेट्रो रेल चल रहे हैं। ग्लोबली 3rd लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क, 1000 किलोमीटर ऑपरेशनल लाइन, ये सबको दिखता। 136 वंदे भारत ट्रेन चल रहा है 50 रूट में। तो आंकड़े दे रहे, आंकड़े तो कैसे आप मुकाबला करोगे? प्रदीप जी, मैंने वही तो बात अभी आपसे की। मेट्रो का सपना किसको आया था? मेट्रो चलवाई किसने? आप इसको ऐसे देखिए ना। तो सर आगे बढ़ा रहे हैं ना उसको। बने किसको आया था? तो क्रिटिसिज्म क्या है? प्रधानमंत्री, अगर आप स्टेट कर रहे हैं तो ये आपकी उपलब्धि नहीं है, इसको आप उपलब्धि में नहीं ला सकते। डबल किए, 60 साल एक तरफ, 10 साल एक तरफ। सर एक मिनट सुन तो लीजिए मेरी बात सर।
देखिए, अगर ये उपलब्धि आपकी नहीं हो सकती, आप प्रधानमंत्री किस लिए बने? 10 साल से आप प्रधानमंत्री बने हैं, तो अगर इसको स्टेट नहीं करेंगे, अगर मेट्रो नहीं बनवाएंगे, लेकिन कोई नया आपने काम किया। अगर जैसे कोयले के इंजन चल रहे थे, आज इलेक्ट्रिकल इंजन चल रहे हैं। लाइन कितनी थी? सर कोयले के बाद डीजल आया, डीजल के बाद बिजली आई जी। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये अचीवमेंट इसे कहते हैं सर। न्यूक्लियर उसकी उन्होंने, मनमोहन सिंह ने अपने यहाँ पे परीक्षण कराया, तो ये चीज कहते हैं। इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश को अलग कराया, युद्ध लड़े पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, ये तो लाल आंखें से दिखा रहे। और चीन कब्जा करता चला जा रहा। भाई चीन कब्जा कर रहा, मानने को तैयार नहीं। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, मानने को तैयार नहीं है। आज मुझे बता दीजिए तो सर आप क्या चाहते हैं चीन को लेकर? सॉरी आपको रोक रहा हूं। चीन की बात आप लोग बार बार करते हैं, सारा विपक्ष बार बार करता है। मुझे अभी तक सोल्यूशन नहीं मिला, अभी तक उसका रेजोल्यूशन क्या है? चीन के साथ युद्ध करें, क्या करें आपके मुताबिक? बोलिए सर। देखिए, ये तो विदेश नीति है, उसको अब कैसे, मैं तो प्रधानमंत्री नहीं हूं, ना कोई मैं मंत्री हूं, तो मैं उन नीतियों कैसे बना दूंगा, या तो विपक्ष कैसे बनाएगा? आप विपक्ष की बात करें, राहुल गांधी जी की बात करें, आप बात करें उद्धव ठाकरे जी की बात करें, आप शरद कुमार जी की बात करें, या आप अखिलेश यादव जी की बात करें, तो ये तो कहना गलत है ना। सरकार में तो आप है ना, नियम सब नीतियां तो आपको बनानी ना, कि वो हमारे पर कब्जा ना कर सके। तो बात इसकी मेन हो रही ना, आप कब्जा होता चला जा रहा है। मैं सोच रहा था द्विवेदी जी, मैं सोच रहा था कि आप राजीव गांधी जी का उदाहरण देंगे कि जनरल सुंदर जी जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया रणनीति बनाई थी। अगर चीन 10 किलोमीटर अंदर आता था तो हम लोग कहीं और 20 किलोमीटर अंदर घुस जाते थे। अगर इधर से आते थे तो हम वहां से घुस जाते थे। फाइनली क्या हुआ कि चाइना को नरसिम्हा राव के वक्त हम लोगों के साथ अच्छी तरीके से शेक हैंड करना पड़ा। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अभी वो दोबारा नीति एक बार फिर अपनाई जाए। The armed forces should be given a free hand as far as China is concerned. That's my opinion anyway. इसलिए नाम नहीं लिया कि अगर मैं नाम लेता तो ये होता था मैं प्रशंसा कर रहा हूँ कांग्रेस की, तो क्या हो गया? करिए। लेकिन आपने जो प्रशंसा की जी, उससे भी तो सीख इनको लेनी चाहिए ना। लेनी चाहिए माननीय मोदी जी को, उनकी सरकार को जी लेनी चाहिए। जब माननीय राजीव I am गांधी sure there are enough people there who would have वो advised them नीति on the same नहीं बना thing. पा रहे हैं। जी राइट, लेट्स गो टू अब्दुल वाग साहब। द्विवेदी जी, आपकी इजाजत हो तो वाग साहब से भी बात कर लें, काफी देर हो गई है। 10 सेकंड मुझे और एक दो चीजें हैं, सर प्लीज। सर मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास। ओके, लेट मी गो टू अब्दुल वाग साहब। थैंक यू। वाग साहब, अभी क्या है, देयर आर कपल ऑफ थिंग्स वेरी फ्रैंकली एज फार एज द महाकुंभ इज कंसर्न। इन माय पर्सनल ओपिनियन इट हैज बीन वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एक्सेप्ट फॉर वन डे। एक दिन के एबरेशन को छोड़ के जब स्टैम्पीड हुई, वो क्यों ही, reasons are being gone into. I think the guys at the local level failed. They should have provided another exit for all those people who were coming in. It was the same entry, same exit. The crowds were too much. 12 करोड़ का crowd, sir. 12 करोड़ कितने होते हैं? And in spite of that, we've had officially only 30 deaths and I think about 60 or 70 casualties. In the sense that there are injured people. But it's a very well organized thing. जो भी आ रहा है वहां पे तारीफ कर रहा है। एक्सेप्ट दी ऑपोजिशन वाले सब लोग कह रहे हैं कोई व्यवस्था नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, हर बार होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहता हूं सर, महाकुंभ के बारे में तो आप बात करें, लेकिन महाराष्ट्र के बारे में भी अगर थोड़ी सी बात कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। सर बीड़ को लेकर के, एज फार एज आई नो, एंड आई एम श्योर आई नो बिकॉज दिस इज फ्रॉम वेरी रिलायबल सोर्सेज, देवेंद्र फडणवीस साहब हैज पुट हिज फुट डाउन, ही सेड धनंजय मुंडे हैज टू गो। अजीत दादा पवार मान नहीं रहे। How will this situation get resolved, sir? अब्दुल वाग साहब, प्लीज। धन्यवाद, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। जी प्लीज। मैं कल रात को ही महाकुंभ से आया हूँ। क्या बात है सर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जिस दिन में ये दुर्घटना घड़ी रात को, उसी दिन शाम को मैंने त्रिवेणी संगम पे स्नान किया। मैं खुद प्रयागराज में था, लेकिन भीड़ इतनी थी, श्रद्धालु, देहाती श्रद्धालु अपने बीवी बच्चों के साथ, माता पिताओं के साथ इतने लाखों की संख्या में आ रहे थे। सर करोड़ों की संख्या में, करोड़ों की संख्या। जी ठीक है, लाखों बोलिए, देखो करोड़ों एक टोटल वो दिन का होता है, लेकिन आने वाले लोग तो लाखों में थे जी। तो वो जो लाखों करोड़ों जो कुछ कहना है आपको, वो आ रहे थे।
गंगा मैया के किनारे पर और यमुना जी के किनारे पर आने वाले बहुत सारे जो घाट है, वो घाट को जाने के लिए बहुत सारे रास्ते थे, लेकिन जो कुछ हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे तो, मैं वहां से तो सुखरूप आया, मुझे दिल से चोट पहुंची है। अभी इस चर्चा का वो विषय नहीं है, इसके लिए हम लोग महाराष्ट्र का आपने सब्जेक्ट निकाला है। मुझे महाराष्ट्र के ऊपर आप चाहते हैं आपकी मैं बात करे, लेकिन उसके पहले हमारे कांग्रेस के मित्र और उबाठा के मित्रों ने जो बात की उसके लिए खाली 2 टिप्पणी करूंगा। प्लीज गो अहेड। पहली टिप्पणी है कांग्रेस के मित्र के लिए कि उनके नेता ने कहा है कि माय फाइट इज नॉट अगेंस्ट अ पॉलिटिकल पार्टी, माय फाइट इज नॉट अगेंस्ट सिस्टम, माय फाइट इज अगेंस्ट द नेशन। क्या कहना चाहते हो? आप देश के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हो, इसका मतलब आप देशद्रोही है। और मैं खुलेआम आपके चैनल पे ये बोल रहा हूं कि राहुल गांधी देशद्रोही है। राहुल गांधी के ऊपर देशद्रोह का गुनाह लगाना चाहिए, क्योंकि उसने देश के खिलाफ मेरी पार्टी है ऐसा बोलकर ये देश के खिलाफ एक जंग, एक लड़ने का लोगों को आदेश दिया। ये मेरी पहली बात है। जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे जो उबाठा के मित्र है, उन्होंने तो बहुत सारी सूचनाएं दी है, राजकारण कैसा करना चाहिए, चीन के साथ क्या करना चाहिए, गरीबी कैसी हटनी चाहिए। अरे 20 मिनट बोलते गए भैया, आपको मुंबई महानगर पालिका चलाने को नहीं आई, आप ज्ञान बांटने चले हैं। आप आपका ज्ञान आपके नेता को दीजिए। यदि आपका ज्ञान थोड़ा सा नेता को होता था तो 72 जब सीट से लाए थे, 2014 में 63 लाए थे, आज 20 तक नहीं आने की नौबत होती थी। साहब मैं आप जब बात करते थे, मैं द्विवेदी जी आपके बीच में कोई नहीं बोला। उस पर बोलिए, ज्ञान मत दीजिए हमको। द्विवेदी जी आपके बीच में कोई नहीं बोला। आप भीड़ में बोलिए ना, चलेगा। आप ध्यान बोलिए ना। द्विवेदी जी प्लीज, क्योंकि आप जब बात कर रहे थे मैंने चुप्पी सा दी थी। जी बोलिए बोलिए, बात करने दीजिए। बोलिए अब्दुल बाग साहब बोलिए प्लीज। तो ये जो ज्ञान, आपकी ज्ञान की गंगा जो बह रही है ना, उसका थोड़ा सा धारा प्रवाह आप मातोश्री के ऊपर खींच लीजिए, थोड़ा सा फायदा महाराष्ट्र को, मुंबई को और देश को होगा। चलो आगे बढ़ते हम बीड़ के ऊपर। देखो बीड़ में क्या सिचुएशन है। बीड़ में राष्ट्रवादी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों भी वहां से जीत के आई है। धस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के आमदार है जी। हमारे गोपीनाथ मुंडे जी की जो बेटी है पंकजा जी, वो हमारी एमएलसी है। वो धनंजय मुंडे जी भी कभी ना कभी हमारे साथ थे। अभी धनंजय मुंडे जी राष्ट्रवादी के साथ है। देखो क्या होता है कि धनंजय मुंडे जी जिस पार्टी के हैं, उस पार्टी के नेता ने उनके बारे में जो कुछ कहना है, जो कुछ करना है। भारतीय जनता पार्टी उनके बारे में कुछ भी निर्णय नहीं लेगी। जो निर्णय लेना है वो उनके पार्टी के जो नेता है आदरणीय अजित दादा पवार, उन्होंने लेना चाहिए। दूसरी बात ऐसी है कि वाल्मीकि कराड़ और उनके लोग आज अंदर है, उनके ऊपर मकोका लग गया है। इसी बारे में जो देशमुख साहब संतोष की हत्या हो गई है उसके बारे में, और जो बात हो रहा है उसके बारे में, सभी बहुत सारी बातें उभर कर सामने आ रही है। इतने दिन ये नहीं हो रहा था। एक क्यों नहीं हो रहा था? इसके पहले अढ़ाई बरस जो हमारा शासन था, उसके अढ़ाई बरस पहले 2019 से 2021 तक, मिड 21 तक अढ़ाई बरस तो उद्धव जी जब चीफ मिनिस्टर थे, तब धनंजय मुंडे उनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। तो अढ़ाई बरस में वो साधु संत हो गए और अभी धनंजय मुंडे गुंडा हो गए। ये तो हम तो हजम नहीं हो सकती। इसके लिए आप जब धनंजय मुंडे और बीड़ की गुंडागिरी इसके बारे में कहते हैं, तो अढ़ाई बरस जब आप चीफ मिनिस्टर थे, तो यदि आप कहते हैं कि बीड़ में गुंडागिरी है, तो गुंडागिरी जो है आपने निकल कर क्यों नहीं दी? एक मुद्दा नंबर 1। मुद्दा नंबर 2, इतना होकर भी शिवसेना का एक भी आमदार पूरे बीड़ जिला में जीत कर नहीं आया।
वाघ मुद्दा साहब, नंबर 2 है। और यदि महाराष्ट्र में यदि लोग आपको चाहते थे तो आज कांग्रेस के 16, शरद पवार के 10 और आपके 20 आमदार आए। आपके तीनों के मिलकर जितने आमदार आए उतने तो हमारे सहयोगी पार्टी शिवसेना, जो शिंदे गट के थे, मैं तो शिंदे गट नहीं कहूंगा, मैं तो शिवसेना कहूंगा, क्योंकि असली शिवसेना वो है। आप तो फुटी रहे, आप तो एक शिवसेना से निकल गया हुआ ग्रुप है, जिन्होंने अपना झंडा छोड़ दिया है, जिन्होंने बाला साहेब का विचार छोड़ दिया है, जिन्होंने अपना नाम गमाया है, जिन्होंने अपना निवडणूक चिन्ह गमाया है, आमदार गमाया है, खासदार गमाया है, नेता गमाया है। ऐसी बहुत बेकार स्थिति आपकी आ गई है। आपको आपका घर सुधारने की बहुत जरूरत है। कृपा करके आपका जो टूटा हुआ घर है वो बांधने की कोशिश करो और हमें सलाह देने से बच जाओ। अवधूत वाघ साहब, मोदी जी, अमित शाह जी ने कल ही बुक द डेकेड ऑफ मोदी जी, द डेकेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी बुक एंड स्टैटिस्टिक्स भरपूर दे दिया कि किस प्रकार से 10 ईयर हैज बीन अ ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आगे जाके बीजेपी ने भी हाईलाइट किया 16 कंट्रीज, 16 राज्य, विदेशी राज्यों ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया। इट स्पीक्स फॉर द अचीवमेंट दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज डन। बट कांग्रेस फिर भी वही संविधान विरोधी, पेपर लीक्स, काला धन, 15 लाख, 2 करोड़ जॉब, आज भी लोग लोन करके अपने घर चला रहे हैं, बच्चों को खाने का पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा। तो कांग्रेस इज स्टिल क्रिटिसाइजिंग मोदी व्हेन यू से 16 सिविलियन अवार्ड्स इंटरनेशनली शोज द फीट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। वाघ साहब, सर ऐसा है कि अमित जी अभी बात कर रहे हैं, मैं तो 2018 में ही बात कर चुका था जी। 2019 में सेकंड टर्म मोदी जीत के आए, लेकिन 2018 में मैंने कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, और मैंने कहा था मोदी तो ईश्वर का 11th अवतार है, मैंने कहा था विष्णु जी का 11th अवतार है। आई वाज द फर्स्ट पर्सन ऑन दिस चैनल, ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र। आई सेड यदा यदा ही धर्मस्य। मैंने तो वही कहा था लास्ट टाइम कि मोदी जी विष्णु के अवतार है, मैंने वो टाइम कहा था। भगवान का ही अवतार है वो, ऐसा मैंने कहा था, और मैं वहां कायम हूं। अभी बात आई है कि सोनिया जी ने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू थक कैसी नहीं जाती मोदी जी की स्तुति करते करते, तो उन्हें हमारे संस्कृति का कोई पहचान नहीं है। शी डजंट नो आवर कल्चर। हम भगवान की जब स्तुति करते हैं, दुर्गे दुर्गट भारी तुझविण संसारी, अनाथ नाथे अंबे करुणा विस। The funny part is, it was said in the presence of Mrs. Gandhi. That is the whole point. She was also on stage. इसके पहले कि मैं जोनाल्ड साहब के पास जाऊं, द्विवेदी साहब wanted to make an intervention. बोलिए सर। संजय द्विवेदी देखिए अभी जो बात है भारतीय जनता पार्टी वालों ने कही, जी। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता हमारे बोल रहे हैं जी 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 कि उनकी स्तुति करना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर वो अवतार है तो उनको कंदराओं में जाके अपना केदारनाथ चले जाए या बद्रीनाथ चले जाए, वहाँ कंदराओं में बैठ के एक तमाम साधु संन्यासी करते हैं, तो माननीय मोदी जी को वहीं जाके अपना करना चाहिए भजन कीर्तन। देखिए ये प्रधानमंत्री नहीं हो सकता ना, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर होते, अगर ब्रह्मा का अवतार होते तो 303 से 240 में कैसे आ गए वो? और महाराष्ट्र की जनता ने परजीवी बना दिया। तो अगर इतने बड़े ज्ञाता थे तो महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रधानमंत्री को क्यों नहीं वोट दिया? चलिए हम अगर हार गए, हम विधानसभा चुनाव हार गए, तो महाराष्ट्र की जनता ने आपको प्रधानमंत्री के लिए तो नहीं चुना ना, उन्होंने आपको हरा दिया। अगर आप देखा जाए हार जीत, मैं प्रवक्ता जी से यही बात कहूंगा, हार जीत अपनी चलती रहती है, कौन कैसे जीता कैसे नहीं जीता वो बात अलग है। लेकिन मैं दूसरी पॉइंट पे आता हूँ, एक कर की बात की जा रही है कि अब देश में एक कर लगना चाहिए, इसीलिए सब जीएसटी लाई गई थी। तो मैं कह रहा हूँ जब पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो रहा है तो ये जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं आ सकता है? जब हमारा दही आ सकता है, जो हमारे रोज उपयोगी आइटम है वो आ सकते हैं, स्वास्थ्य हमारी दवाइयाँ आ सकती हैं, किसानों के ट्रैक्टर ट्राली आ सकती हैं, तमाम चीजें आ सकती हैं, तो पेट्रोल डीजल जो है वो हमारा उसमें जीएसटी में क्यों नहीं आ सकता? अगर आप जीएसटी लगा दें तो आप तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा था पेट्रोल डीजल का। तो ये क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? इसमें क्या लाडली बहना को जो आपने 2-2.5 करोड़ बहनों को जो दिया था आपने पैसा 7,500 रुपए, तो अब उसमें छटनी क्यों की जा रही है? क्या वो वोट पाने के लिए, क्या नोट बांट के वोट पाने का कारण किया गया था? आज जो सुनने में आ रहा महाराष्ट्र में कि साहब लाडली बहनाओं की छटनी की जा रही है,
कि हम इनको देंगे, इनको नहीं देंगे, इनको देंगे। मेरा सब सीधा सीधा है, जितनी लाडली बहनाओं को चुनाव से पहले पैसा दिया गया था उन सभी को शामिल किया जाए और उनके अकाउंट में जो पैसा है लाडली बहना का वो पैसा दिया जाए। और जो इन्होंने रखी बात, जो इन्होंने जो रखी नहीं था वो गारंटियां मेरी है, उन गारंटियों को तत्काल प्रभाव से पूरा किया जाए। अभी भीड़ की बात चल रही थी, जब महाविकास अघाड़ी बात भी की प्रवक्ता जी ने, महाविकास अघाड़ी सरकार में सुशांत सिंह राजपूत एक केस हुआ था बस, और ये कहाँ चले गए थे? बिहार चले गए थे। बिहार से उन्होंने सीबीआई जांच करा दी, जबकि ऐसा नहीं होता है। आज यहाँ पे कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त है। आप अभी कह रहे साहब एनसीपी का मामला है, धनंजय मुंडा इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे? तो ये तो बिल्कुल मजाक चल रहा है ना देश में, या महाराज मजाक चल रहा है। द्विवेदी जी, वकफ बिल के खिलाफ आपने वोट दे दिया, अमेंडमेंट बिल के खिलाफ। फडणवीस साहब ने क्लियर कट आरोप लगा दिया। पहले ये सिद्ध हो गया कि आप जिस प्रकार से बाला साहब ठाकरे जी के विचारों से कितने दूर हो चुके हैं, और आज तुष्टीकरण के चलते आपने और वकफ बिल अमेंडमेंट को जिस प्रकार से आपने वोट किया खिलाफ, फडणवीस जी ने एकदम आलोचना किया है उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का। बोले कि उदाहरण है कि आप बाला साहब ठाकरे जी बोलिए जी, राहुल जी, राजीव जी, देवेंद्र फडणवीस जी जो हैं या भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उद्धव ठाकरे तारीफ तो नहीं करेंगे ना? तो उनसे उम्मीद रखने की हमारी क्या नीतियां हैं, बाला साहब ठाकरे क्या नीतियां थी बता दीजिए हमको, आपको मैं कैसे सुनवा देता हूँ। उन्होंने कभी मुसलमानों के लिए कोई गलत शब्द इस्तेमाल नहीं किया। साबिर से हमारे मंच बैठे हुए थे बाला साहब के, उन्होंने कहा मेरे साथ मुसलमान भी शामिल है, तो उनका विरोध तो भारत नहीं दे पा रहे। बाला साहब ठाकरे इतनी बात करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बाला साहब को क्यों नहीं भारत दिया गया? देखिए ये सब इनकी चाल चलित चेहरा इनका अलग है। मैं कहता हूँ जीएसटी में है, आप जीएसटी में हटाइए जो आपने दूध पे लगाया है, जो हमारी रोजमर्रा की चीजें जरूरतें हैं उस पर जीएसटी आपने लगाया है, स्वास्थ्य में आपने जीएसटी लगाया है, कैंसर की दवाओं में जीएसटी लगाया है, जो जहां आपने लगाया है, ट्रैक्टरों में ट्रैक्टर खरीदने में जीएसटी लगाया है, उनमें आप हटाइए। अच्छा अभी बजट आना है, अभी हमारा 2025-2026 का जो बजट आना है उसमें ऐसा ना हो कि जिस तरह पिछली बार भी किया था 15 लाख के ऊपर जिनकी सैलरी है वो 30% देंगे, और व्यापारी जिनकी 1 करोड़ जो आमदनी होगी वो 30% देंगे। तो जो मेहनत कर रहा है, जो हमारा एक बच्चा जो रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहे आप, वो रोजगार कर रहा है, महीने भर जाता है, 8-10 घंटे 12 घंटे मेहनत करता है, आप 15 लाख से ऊपर 30% आप ले रहे हैं, 4.5 लाख रुपए ले रहे हैं। अब एक आदमी जो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है व्यापारी, उस पर आप 30% ले रहे हैं। तो इस तरह की आम जनता के लिए जो बजट आए वो आम जनता के लिए आना चाहिए। इस अति परिवहन घोटाले की बात अभी चल रही थी, अभी जोर शोर से कहा जा रहा था शिंदे परिवहन मंत्री थे 2.5 साल। तो मैं यही पूछता हूँ, परिवहन मंत्री से और उन्होंने घोटाला किया तो एकनाथ शिंदे इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे फडणवीस जी? जब उन्होंने देख रहा 250 करोड़ रुपए घोटाला हुआ, उसकी जांच चल रही है, तो अगर जांच हो रही है तो मुख्यमंत्री कैसे थे महाराष्ट्र के बने हुए हैं? देखिए यही दोहरा चरित्र समझ में आता है। आपको धनंजय मुंडे हटाना नहीं, तो धनंजय मुंडे को आप हटाना, आप बाजू के बिल्डिंग में क्रिकेट खेल रहे लंबे हैं। अब एकनाथ शिंदे स्लाइडिंग लगा डालू क्या? जी परिवहन वाला आपने आरोप लगाया और उसकी जांच आप करा रहे हैं, वो इस्तीफा क्यों नहीं दे? स्लाइडिंग बंद करो। लेट्स गो अक्रॉस टू धनंजय जुनारकर साहब। लाइव आए ना, आई ऑलमोस्ट सेड धनंजय मुंडे। जुनारकर साहब, आपसे जानना चाहता हूं, ये तो भीड़ की बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि हाल ही में महाराष्ट्र में हमारे मित्र बाबा सिद्दीकी का कत्ल हुआ। बाबा सिद्दीकी के जो बेटे हैं जीशान सिद्दीकी, वो बार बार ये कह रहे हैं कि भैया जो क्या नाम है इनका, जो क्या नाम है फैंटम जो है हमारे, द फैंटम, बेताल चलता फिरता प्रेत जिसको कहा जाता है कॉमिक्स में, लॉरेंस बिश्नोई, जिसका नाम हर जगह आ रहा है। ये भी लॉरेंस बिश्नोई, कनाडा में भी लॉरेंस बिश्नोई, यहां भी लॉरेंस बिश्नोई, पाकिस्तान में भी लॉरेंस बिश्नोई, और लॉरेंस बिश्नोई जो है वो बारामती जेल में बंद है। कि लॉरेंस बिश्नोई साहब फर्स्ट एक्यूज्ड हैं चार्जशीट में, और उनके साथ आज तक कभी बात नहीं हुई है मुंबई पुलिस की। उसके अलावा जीशान सिद्दीकी साहब जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, बाबा सिद्दीकी भी कांग्रेस में थे, उन्होंने कोई 4 या 5 बिल्डर्स का नाम लिया है। उद्धव ठाकरे सेना के अनिल परब का नाम लिया है।
भारतीय जनता पार्टी के मोहित कंबोज का नाम लिया है, पुलिस इन लोगों से बात नहीं कर रही है। तो ये चल क्या रहा है सर, ये जरा बताएंगे आप धनंजय जुनेकर साहब, आप खुद एडवोकेट हैं, बताइए। सर मैं वही आपको बताना चाहता हूं कि इसके अंदर 4,500 पन्नों का इन्होंने चार्जशीट दायर किया है, जो 90 दिनों में अंदर करना चाहिए। इसके अंदर ये उन्होंने करने के बाद इन्होंने आज तक वो साबरमती जेल में जाके कोई पूछताछ नहीं की, और जिस प्रकार से वो वहां से कांटेक्ट कर रहे हैं, ऐसा हम लोग न्यूज पढ़ रहे हैं कि अलग अलग इंटरनेट के माध्यम से कोई फोन यूज करके उन्होंने बातचीत की है कि 5 लाख रुपया एडवांस दिया जाएगा और जो दोनों ये काम करने वाले हैं उनको एक फ्लैट दिया जाएगा। ये सब चीजें पुलिस ने सबमिट की, ऐसा पेपर में हमने पढ़ा है। तो आप सोचिए 4,500 पन्नों की चार्जशीट आप दायर करते हैं, उसके अंदर जो मेन कल्प्रिट है उसका किधर भी नाम नहीं है, उसका एक लाइन का उसका कोई जवाब स्टेटमेंट आता नहीं है। इसका मतलब पुलिस की जांच किस दिशा में जा रही है। दूसरा सर, जो जिनके नाम इन्होंने दिए हैं तो लगता नहीं कि इनकी कोई जांच होगी। जो 4-5 नाम अभी आपने गिना है उसमें से किसी की भी जांच होगी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ये पूरी की पूरी जांच ये लोग ने अलग ही ट्रैक पे लेके गए हैं। अगर ये चाहते हैं ये 5 बिल्डरों के नाम अगर उसमें आए जिन्होंने उनको फोन किए थे, उनको जो रोज का डायरी लिखने की हैबिट थी, तो उसके अंदर सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी वो फाइल कर सकते हैं। समझो इसमें 4,500 पन्नों में काम नहीं हुआ तो उसके बाद और वो मेहनत कर सकते हैं, लेकिन पुलिस वैसा काम, उसकी पुलिस की मनोदशा ऐसी है ऐसा लगता ही नहीं है। क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में आप देखिए ना, पुलिस परभणी की पुलिस एक कस्टोडियल डेथ हो जाती है उसके ऊपर कोई विचार नहीं हो जाता। कराड़ में जितने भी हाईएस्ट ए लेवल के पुलिस है, जो बड़े अधिकारी है, उनका वो कराड़ के साथ संबंध दिखाया जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि 6.5-7 साल ये डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का जो लॉ का डिपार्टमेंट है, पुलिस का डिपार्टमेंट है, ये आदरणीय फडणवीस साहब के पास ही है। तो क्या फडणवीस साहब अपना नेतृत्व उनके ऊपर कमजोर करके रखा हुआ है कि काम नहीं हो पा रहा है? ये सबसे बड़े ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है। I want to go ahead with देवेंद्र फडणवीस जी ने जिस प्रकार से डेवलपमेंट का एक लहर महाराष्ट्र में लेके आए, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र अथा थांबणार नाही। जुनेकर साहब, महाराष्ट्र अथा थांबणार नहीं, अटल सेतु, कोस्टल रोड, नवी मुंबई एयरपोर्ट, पालघर एयरपोर्ट, 3 एयरपोर्ट मुंबई के बगल में, मेट्रो लाइंस के 14 लाइन, पॉट होल फ्री मुंबई, पूरे कॉन्क्रीटाइजेशन, तो सब जगह डेवलपमेंट के लहर है। अभी फिर वो बजट आ रहा है, सेंटर का भी आ रहा है, अभी स्टेट का भी आ रहा है। नो स्टोन अनटर्न्ड बाय डेवलपमेंट के अंदर। आपके पास एजेंडा बचा क्या है जुनेकर साहब? देयर इज नो एजेंडा, डेवलपमेंट इन फुल फ्लो पूरे महाराष्ट्र। सर ऐसा है कि आज की तारीख में भी हम लोग ये जो इनको जो जीत मिली है उसके ऊपर संदेह हम लोग व्यक्त करते हैं कि लोकसभा से विधानसभा तक 50 लाख वोटर कैसे बढ़े, वोटिंग के दिन शाम को 76 लाख वोटर कैसे बढ़े। उनके आरटीआई में हमने और जो भी सबूत मांगे कि सीसीटीवी कैमरा के रिकॉर्डिंग आप कृपया उपलब्ध कीजिए, आज तक उन्होंने उसमें से कोई भी रिकॉर्डिंग दिया नहीं। ऊपर से उन्होंने कायदा बना दिया कि आप इलेक्ट्रॉनिक चीजें का कोई भी रिकॉर्डिंग वगैरह आप मांग नहीं सकते। आपने चुनाव आयुक्त जो रहता है उसकी जो नियुक्ति में सीजीआई का एक रोल हुआ करता था वो आपने बाहर कर दिया। आप देखिए कि जहां कांग्रेस को 13 एमपी आए, एक एमपी के नीचे कम से कम 6 एमएलए आते, तो एक 70-75 एमएलए कम से कम कांग्रेस के आ सकते थे। मान लो कांग्रेस का काम खराब हो गया, 70-75 की जगह 25-30-40 कुछ तो होता। वो 13 एमपी आने वाली पार्टी को 15 एमएलए आ रहे, और अजीत पवार जैसे व्यक्ति को जहां इसका 1 एमपी चुन के आया था उसके 5 एमएलए भी आने की कोई संभावना नहीं थी, उनके 42 एमएलए चुन के आ रहे। तो ये जो सब जो चमत्कार हो रहा है, वो आदरणीय अवधूत वाघ जी ने कहा था मोदी जी भगवान है, तो हम लोग भी उसको भगवान मानना पड़ेगा, क्योंकि इतने सब चमत्कार हो रहे हैं। चुनाव आयोग में राज ठाकरे जी ने बोला था कि लोग वोट कर रहे, लेकिन वो वोट हम तक पहुंच नहीं पा रहे। वही स्थिति हो गई है। सब चमत्कार की भाषा में चमत्कार के जवाब उनको देना पड़ेगा। अवधूत वाघ साहब, देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र अथा थामणार नहीं, बट कांग्रेस अभी भी वो ईवीएम में गड़बड़ है, इलेक्शंस हैज नॉट बीन फेयर, तरक्की, दिस लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स। हाउ आर यू गोइंग टू, व्हाट इज योर रिस्पांस अवधूत वाघ साहब? अभी इतनी लंबी बहस चली, छोटा छोटा पॉइंट लेता हूं। हमारे उबाटा के मित्रों के लिए एक कहना चाहता हूं कि भैया आपने कहा है कि हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऊपर मुकदमे चले हैं, तो उन्हें मंत्रिमंडल में क्यों लिया? अरे भैया छोड़ो ना, नवाब मलिक जब आपके उद्धव ठाकरे जब चीफ मिनिस्टर थे, तब उनके मिनिस्टर नवाब मलिक जब जेल में अंदर थे ना, तो भी उनका रेजिग्नेशन आप नहीं ले सकते।
तो अभी आप दूसरे को लेक्चर देना छोड़ दो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमारे जो दोस्त है, मित्र है, कांग्रेस के बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मैं प्रभावित हूं उनसे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, अवधूत वाघ ने कहा भगवान है। भैया मैं और एक बाबा से आपकी मुलाकात करवाता हूं, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। 2014, 2019 और 2024 ये तीनों भी लोकसभा में हमने दिल्ली के सातों लोकसभा चुनाव जीते थे। करेक्ट। लेकिन 2014 में 7 लोकसभा जीतने के बाद भी विधानसभा में केवल 3 विधानसभा क्षेत्र हम लोग जीत गए। 2015 में सर, 15 इसका नाम है अरविंद बाबा। 2015 में सर भी ऐसा हुआ जी। पूरा का पूरा कॉर्पोरेशन और विधानसभा हारने के बाद भी लोकसभा में हम लोग सातों सीट जीते। वापिस हम लोग विधानसभा हार गए, पूरी तरह से हार गए। आउट ऑफ 70, 67 सीट्स अरविंद बाबा को मिली। अभी इस चमत्कार को आप क्या कहोगे? तो आप देखना चाहिए, चमत्कार नहीं है। लोग जो वोट देते हैं लोकसभा के लिए अलग, विधानसभा के लिए अलग और कॉर्पोरेशन के लिए अलग देते हैं। मेरे भैया, जब शिवसेना का एक भी एमएलए मुंबई में जीत कर नहीं आता था, तो भी शिवसेना के 40-40 कॉर्पोरेटर अलग अलग जगह से जीत के आते थे। 1985 में छगन भुजबल जीत के आए, उसके पहले सिर्फ वामन राव महाडिक जीत के आए थे जी एक बाई इलेक्शन में। तो शिवसेना एमएलए जीत के नहीं आती थी, लेकिन 40-40 कॉर्पोरेटर उस समय भी लाते थे। तो इलेक्शन का गणित अलग होता है। इतना इजी रहता था ना, 13 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एमएलए, ऐसा होता था। तो चुनाव लेने की जरूरत क्या होती थी? आदमी, वो तो छोड़ो, आप तो 6 महीने की बात कर रहे, मैं आपको 2 मिनट की बात कहता हूं। 1999 क्या हिंदी में क्या कहना, 1999 में 1999 में लोकसभा और विधानसभा साथ साथ हुई भैया। और विधानसभा और लोकसभा साथ साथ हुई। हमें भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के आघाड़ी को बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ लोकसभा में, लेकिन विधानसभा में हमें लोगों ने वोट नहीं दिया। जो आदमी अंदर गया उसने 2 मिनट में अपना डिसीजन चेंज किया। ऊपर एनडीए को वोट दिया, नीचे यूपीए को दिया। तो ये तो क्या आज नई बात नहीं है, सिर्फ आपको समझने की बात है। लेकिन जिन्होंने आंख बंद कर ली है उनको तो मैं जगह नहीं अब्दुल वाघ साहब, आपसे पूछना चाहता हूं, छोटी सी बात है, सॉरी आप ही की बात बोल रहा हूं, मेरे बाकी दोनों गेस्ट माइंड ना करें, और अगर उसके ऊपर आप कुछ बोलना चाहें जरूर बोलें। अगर मान लीजिए, वाघ साहब सुनने वाली बात है, 400 पार का नारा लगा लोकसभा में, मेरा खुद का अनुमान यह था कि भारतीय जनता पार्टी की 325 सीट कहीं नहीं गई। मैंने खुद बोला, यहीं इसी चैनल पे बोला, 325 330 बड़े आराम से आ रही हैं। सर, अगर मैनिपुलेट हो जाती ईवीएम तो लोकसभा में एटलीस्ट 274 तो ले आते, 273 तो ले ही आते, जहां तक बीजेपी का सवाल है। सो दैट वाज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। व्हाई डिड द बीजेपी स्टॉप एट 240? व्हाई कांट पीपल अंडरस्टैंड दिस लॉजिक? अवधूत वाघ साहब। भैया, जिसने आंख बंद कर, क्या है, मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, जब फेल होता था ना तो बाप मारेगा इसके लिए वो बोलता था मेरी सप्लीमेंट टूट गई, मेरा नंबर किसी ने चेंज किया, और कुछ ना कुछ बहाने मार खाने के लिए बचाता था। बात अभी आपने राज ठाकरे की बात निकाली। राज ठाकरे ने लोकसभा के शिवाजी पार्क के स्टेज पे जो सभा थी मनसे और बीजेपी की, उस सभा में उन्होंने कहा है कि ये हमारी जो सपोर्ट है वो हम सिर्फ लोकसभा के लिए दे रहे, विधानसभा हम लोग अकेले स्व बराबर लड़नार। और उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि मैं 200 से 225 सीट लड़ूंगा। राजीव जी, कहा था कि नहीं? कहा था। उन्होंने 128 सीट लड़ी जी। मैं पूछना चाहता हूं, जो नेता बोल रहा है मैं 225 सीट लड़ूंगा, उसको 128 सीट लड़नी पड़ी। अरे उसको उम्मीदवार नहीं मिले तो वोट कहां से मिलेगा भैया? जी। कहा था ना 225। Why he could not contest at 225 seats? Forget about 225. Why not 200? So he even failed to field his own candidates. जो आदमी को विधानसभा के लिए उम्मीदवार नहीं मिलता है उसको लोग कभी वोट देंगे क्या? तो राज ठाकरे ने आत्मचिंतन करना चाहिए और कम से कम आने वाले विधानसभा में
और विधानसभा छोड़ो, कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में 227 सीट्स है, और 227 के अपने कैंडिडेट्स देने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। जी। मंडल चलाना और पार्टी चलाना अलग अलग बातें हैं। मंडल तो घर में बैठ के भी चला सकते हैं, लेकिन बाहर आके काम करना होता है। शाह साहब देखो, मोदी साहब देखो, घूमते हैं नेशनली इंटरनेशनली, सब जगह घूमते हैं, लोगों के साथ घूमते हैं, लोगों से टच रहते हैं। ये तो घर से बाहर नहीं आते और सोचते हैं कि हमको लोगों ने वोट देना चाहिए। भाई क्यों आपको वोट दे? वो कहते की मला एक संधी द्या. अरे तुम्हाला का संधी देणार, कशासाठी देणार, का तुम्ही काय तुमचं कर्तृत्व काय तुम्ही केलेलं आतापर्यंत? तो कुछ नहीं किया ना, तो वो लोग संधि क्यों देंगे? तो ऐसा कोई संधि देने के लिए बैठा नहीं है राजकारण में। वाघ साहब, आज कांग्रेस ने फिर वो डिमांड रखा है, बैन दी आरएसएस, आरएसएस को बैन करो, बिकॉज संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, शिक्षा बजट में कम कटौती कर दिया है, अगेंस्ट वुमन महिला खिलाफ है, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट नहीं करते, माइनॉरिटीज पे अत्याचार हो रहा है, एंड दे वांट टू टेक ओवर ऑल इंस्टीट्यूशंस, पूरे देश के इंस्टीट्यूशंस को आरएसएस ने कब्जा किया। कांग्रेस का डिमांड आज शुरू कर दिया कि बैन दी आरएसएस। ना, हाउ डू यू सी दैट? आप कैसे, यू हैव सीन द आरएसएस, यू हैव सीन द बीजेपी, यू हैव सीन सम। मैं तो बहुत खुश हूं। 1948 में गांधी हत्या के बाद आरएसएस के ऊपर बैन लगाया, और वो आरएसएस के ऊपर जो बैन लगाया ना, वो बिना शर्त पीछे लेना पड़ा, बिना शर्त, अनकंडीशनल, आई रिपीट अनकंडीशनल। 1975 में जब इमरजेंसी लगी तब आरएसएस के ऊपर बैन लगा। टोटल बैन 21 महीने का था इमरजेंसी का। इलेक्शन 19 महीने के बाद हुआ, और इलेक्शन होने के बाद तुरंत आरएसएस के ऊपर का बैन हट गया। जब आरएसएस के ऊपर बैन लगा, अरे हमने तो इंदिरा गांधी को पलटी मार दिया, उसको हराया, वो छोड़ दीजिए। उसके बाद में 1992 में जो ढांचा था, विवादित ढांचा था, जो राम मंदिर बाबर नाम के नमक हराम ने तोड़कर उधर कुछ मस्जिद जैसी चीज बनाई, उसको लोगों ने गिरा दिया, जो भाविक थे, श्रद्धालु थे, उन्होंने गिरा दिया। उसके बाद भी बैन लगाया नरसिंह राव ने, वो बैन भी उनको बिना शर्त पीछे लगाना पड़ा। अरे राहुल गांधी के पिताजी के माताजी के पिताजी ने लगाया हुआ बैन हमने सुना नहीं। अरे राहुल गांधी जी के पिताजी के माताजी ने लगाया हुआ बैन हमने सुना नहीं। राहुल गांधी जी पार्टी के पंतप्रधान ने दिया हुआ बैन हमने सुना नहीं। अरे तुम कौन हो यार? आपने तो आरएसएस की कल्पना भी नहीं की है। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना विश्व रूप दर्शन दिखाएगा, जो भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के सामने रखा था, जब दुर्योधन उसको पकड़ने के लिए आया था, तो उसने अपना रूप दिखाया था, शक्ति दिखाई थी। उस शक्ति यदि दिखाई आरएसएस, तो आप कहां से कहां जाओगे? आपकी औकात नहीं है आरएसएस के सामने बात करने की। आपके परदाइयों ने दिया हुआ पार्टी संभाल नहीं सकते। आज 100 इयर्स हो गए भैया, 100 इयर्स। दिस इज द 100th, वी आर सेलिब्रेटिंग 100th ईयर ऑफ आरएसएस, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इज द बिगेस्ट, वर्ल्ड्स बिगेस्ट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हु इज कंटिन्यूड वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल साहब, एक चीज भूल गए। 100 इयर्स। तुम्हारी औकात है क्या आरएसएस के बारे में बात करने की? वाघ साहब, आप एक चीज भूल गए बताना। हर बार बोलते हैं, इस बार भूल गए शायद। क्यों भूल गए मुझे मालूम नहीं है। बैन लगाया गया, और 1963 रिपब्लिक डे पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पर्सनल इनविटेशन भेजा कि आरएसएस शुड पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे परेड। नो, इट इज नॉट पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो टाइम के जो सेनानी थे, सैन्याधिकारी थे, दैट सैन्याधिकारी वाज इम्प्रेस्ड बिकॉज इन 1962 जो नागरिक सेवा में काम किया था आरएसएस ने, इसके लिए द हेड ऑफ द मिलिट्री वाज इम्प्रेस्ड and he convinced Nehru. Nehru was not interested, but he convinced But the invitation went from Mr. Nehru. His mind, and that is how RSS got an invitation to join the Republican parade. The Republic Day parade at Rajpath. 1963. 1963, 26th of January. You know, absolutely true. उसको कुछ मालूम नहीं है, एक कौन है उसको खुद का कुछ मालूम नहीं है। जुनागढ़ साहब वायनाड घूमता है, कभी अमेठी घूमता है, कभी इधर घूमता है, कभी उधर घूमता है, जिसको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी टिका नहीं सकता है, ऐसा आदमी बोलता है आरएसएस के ऊपर बैन करो। अरे तुम्हारे बाप के बाप आएगा तो भी आरएसएस को कुछ नहीं, खरोच निकाल नहीं सका। तुम कौन हो? तुम किस खेत की मूली हो? कौन हो तुम? जुनागढ़ साहब, why मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जब भी देखो आरएसएस, राहुल गांधी जी जब अगर आरएसएस,
Why the hatred for RSS? Why the hatred for RSS in the top Congress leadership? Junakar साहब. जितने पहली बात तो अभी अवधूत वाघ जी को बात करने की, उनको जरा डिबेट में किसके भी बाप का उद्गार करके बाप का शब्द वापर के उन्होंने जितना भी वापरा वो बिल्कुल डिबेट में वापरने योग्य नहीं। अगर मैं भी उस लेवल पे जाना शुरू करूंगा तो डिबेट सुनने के लिए 1 मिनट में भागना पड़ेगा उनको यहाँ से। आरएसएस ने 1942 में बीजेपी के ये आरएसएस वाले ब्रिटिशों के गुलाम बन के इन्होंने काम किया। भारत छोड़ो में इन्होंने कोई भी प्रकार से देश के लोगों को आजादी के समय पे काम मदद करने का कोई इनका विचार नहीं था, कोई काम इन्होंने किया नहीं। 50 साल तक देश का झंडा लहराने के लिए इनको ताकत हुई नहीं। देश के तिरंगे को 3 कलर 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा है, अपवित्र है, इस प्रकार का इन्होंने भाषण किया। ये लोग संविधान के खिलाफ है, ये लोग महिलाओं के खिलाफ है, ये लोग अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, ये लोग डेमोक्रेसी के खिलाफ है। तो इनको अगर बंद करने के लिए डेमोक्रेसी के हिसाब से किसी विरोधी विपक्ष के नेता ने बात की तो उनको उसी जवाब, उसके तरफ से आप जवाब दीजिए। आप किसको ये बाप ने माँ ने ये सब अगर हम लोग शुरू करें तो आपको 5 मिनट में डिबेट से भागना पड़ेगा। भाषा की गरिमा रखनी पड़ेगी। भाषा की गरिमा रखने का अगर नहीं जमता है तो आप या तो हमको मत बुलाओ या तो इनको मत बुलाओ। इस प्रकार से हम लोग डिबेट के जवाब नहीं दे सकते। जी, लेकिन अवधूत वाघ साहब, I have the organizer here in front of me. The organizer says on invitation of the Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru, a contingent of about 3,000 RSS Swayamsevaks joined the march past at Rajpath on January 26, 1963. This is the organizer, sir. But I have said that. I have said that on the invitation. Now, Junakar Sahab, Pandit Jawaharlal Nehru was right. head of the... Certainly, he must have been persuaded. He was persuaded, and we all know who did it. I think it was Tandon Sahab. Very frankly, I think it was Tandon Sahab who told them, who told Pandit Jawaharlal Nehru इनको बुलाना चाहिए. Basically, my friend from Congress, he doesn't know the history. Let me tell you. So it doesn't matter, sir. Let me go back to Junakar Sahab. Junakar Sahab, भाषा को लेकर के चलिए ठीक है, हो सकता है कि आप हर्ट हुए हों, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं जुनकर साहब, बार बार आरएसएस पे बैन करो, आरएसएस को बैन करो, आरएसएस को बैन करो, उसे क्या होने वाला है? आपको मालूम है ना सर, बहुत लोग आरएसएस के अनुयायी हैं, बहुत लोगों ने संघ में काम किया है, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने संघ को देखा है काम करते हुए। मैं खुद अपनी बात बता रहा हूं सर, मैंने खुद देखा है। एक डिजास्टर जब कहीं पर भी होता है, कुछ होता है, आरएसएस के जो स्वयंसेवक होते हैं, दे आर द फर्स्ट टू अराइव, लास्ट टू लीव। सबसे पहले आते हैं, आखिर में जाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के मेंबर नहीं है लेकिन आरएसएस के लोग हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं जुनाकर साहब, आरएसएस के ऊपर बैन मांग करके क्या होने वाला है? जैसे वीर सावरकर के ऊपर आप बार बार उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, राहुल गांधी जी भी बोलते रहते हैं, क्यों बोलते हैं ऐसा? आप जब ऐसा बोलते हैं तो सामने वाले को आप एक हथियार दे रहे हैं। बोलिए जुनाकर साहब प्लीज। नहीं देखो, अगर आरएसएस का कोई अच्छा काम आपने गिनाया, अगर अच्छा काम किया है तो वो अच्छे काम की तारीफ सब लोग करेंगे, उसके लिए कोई ये नहीं, उसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन ये जो चीजें कांग्रेस ने गिनाई है, ये सत्य है कि नहीं, ये बात भी आप कीजिए ना। ये चीजें हुई है कि नहीं, ये बात भी आप कीजिए। सर वो तो बहुत पुरानी बात हो गई ना। आप खुद जो हैं, आप मेरी आई एम सो सॉरी, आपको मैं टोक रहा हूं, माफ कीजिएगा। आप खुद बोलते हैं, खुद कांग्रेस के लोग बोलते हैं, और हमारे संजय द्विवेदी जी तो बार बार बोलते हैं। आप खुद याद दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है, बार पंडित नेहरू की बात करते हो, सरदार पटेल की बात करते हो। अरे अभी की बात करो ना सर, अभी की बात कीजिए ना सर। 1947 के पहले क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किसने किसके साथ क्या बनाया, कौन सी गवर्नमेंट बनी, क्या, वो सब पूरी पॉलिटिकल इक्वेशन उस वक्त अलग थी। सीधी सादी बात है। अभी की बात करिए ना। अभी आरएसएस के ऊपर बैन डिमांड करके क्या मिलने वाला है आपको? जुनकर साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं, यू आर अ यंग मैन सर, आप यूथ हैं, आप युवा हैं कांग्रेस में, आपके ऊपर कांग्रेस का भविष्य निर्भर है। आप आरएसएस के ऊपर अगर बैन मांगेंगे तो आगे क्या होगा? अभी आपकी कितनी सीटें आएंगी? 16 हैं सर, अगर आगे 6 रह जाएंगी। मैं बोल रहा हूं आपको। अब बताइए आप जुनकर साहब प्लीज। सर ये जो जिस विचार पे आरएसएस की स्थापना हुई, क्या वो विचार उन्होंने छोड़ दिया है क्या? हिंदुत्व का जो उनका विचार था वो मुसलमानों को एक्सेप्ट करते हैं क्या? जो देश के अंदर अलग अलग नहीं कितनी बार बोलेंगे कि मतलब अगर वो एक्सेप्ट करते हैं, अभी वो देश की आजादी की डेट को वो मानते नहीं। कोई बोलता है 2014 में देश आजाद हुआ, कोई बोलता है 2022 में, 2023 में राम मंदिर बनने के बाद आजादी मिली। तो ये संविधान का इन लोग को कुछ मतलब पड़ा नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोई त्याग किया नहीं। 1 घंटे के लिए भी इनमें से कोई जेल में गया नहीं है। तो वो इनका बैकग्राउंड है, यही उनका बेसिक है।
तो वही वही चीज वो लोग लेके आए हैं और वही चीज आगे चला रहे हैं। तो उन्होंने कोई महिला को आज आरएसएस का प्रमुख बनाया है क्या? ब्राह्मण को छोड़ के कोई भी उनका आरएसएस का कोई भी बड़ी पोस्ट पे आपने कोई आदमी देखा क्या? सर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राजपूत ठाकुर, रज्जू भैया, ही वाज माय गुरु सर। सर रज्जू भैया मेरे गुरु थे, किनकी बात कर रहे हो सर? ब्राह्मण नहीं थे भैया। भैया आप जात पे क्यों आते हैं? जी बोलिए बोलिए सर, उनको ये बोलने दीजिए। अरे अब्दुल भाई साहब बोलने देना, क्या है सर? आपके सामने बच्चा है, अलग प्रकार के न्याय है इंदिरा गांधी और ब्राह्मण, राजीव गांधी छोटे लोगों के लिए ब्राह्मण, आने वाला प्राइम मिनिस्टर जात राहुल पात गांधी मानने वाला इनका जो समूह है, ये इनके जो विचार है, ये विचार देश के घातक है। अगर ये सबको चल के लेके चलने वाली बात करेंगे तो बिल्कुल इनको कोई विरोध करने की बात नहीं करेगा। द्विवेदी साहब बताओ क्या? द्विवेदी साहब कुछ बाकी बोलना तो चाहते छोड़ो। थे। द्विवेदी साहब बोलिए। जब तक आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रह के आप बोलते हैं आरएसएस के ऊपर बैन करो। अरे भैया आप थोड़ा तो दिमाग चलाइए, कुछ होने वाला नहीं है। आरएसएस हमारे विचारों की गंगोत्री है, जहां से हम लोग प्रेरणा लेते हैं। और जब आपने बात किया कि इन्होंने कुछ त्याग नहीं किया, भैया 1,40,000 लोग, 1,40,000 लोग ऑन द रिकॉर्ड इमरजेंसी में आरएसएस से स्वयंसेवक 21 महीना अंदर थे, जिसमें आरएसएस के सरसंघ चालक बाला साहेब देवरस अंदर थे। आप क्या बात कर रहे हो? आप क्या कैसे बात कर रहे हो? आज के जो सरकार्य है दत्तात्रेय होळबरे, वो टाइम युवा नेता थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठक महासचिव थे, उनको अंदर के 1,40,000। आप क्या बात कर रहे हो? आप 1948 में आपके कांग्रेस की लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के घर जलाए मीरज में, वेस्टर्न महाराष्ट्र में, सब जगह दंगे हुए, कितने लोगों को जिंदा जलाया आप लोगों ने। आप भूल गए हैं? आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर इतने अत्याचार किए, लेकिन आरएसएस ने कभी भी हाथ में पत्थर नहीं लिया है। और रही बात अभी लेटेस्ट आपके राहुल गांधी जी का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी पहले था और अभी प्रियंका जी का है, वायनाड में जब भूस्खलन हुआ सबसे पहले दौड़ कर गए केरला के आरएसएस के कार्यकर्ता। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी किसकी है, वहां मरने वाले हिंदू है कि मुस्लिम है। और जब आप मुसलमानों की बात कहते हैं, आपको बता देता हूं, मुस्लिम विचार मंच नाम का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ऑफिशियल मुस्लिम लोगों का संगठन है, जहां कम से कम आज 1,50,000 से ज्यादा का सक्रिय कार्यकर्ता है, मुस्लिम सक्रिय कार्यकर्ता। आपको मालूम नहीं है, आपने मालूमात करना चाहिए। इसके लिए मैंने कहा था कि संघ का विश्व रूप दर्शन यदि आपको होगा तो आपकी आंख फट जाएगी। आपको मालूम नहीं है, और मैं सोचता हूं कि आप ऐसे ही अंधेरे में रहना। आपको जितना कम मालूम उतना अच्छा। हम काम करते रहेंगे, हम बढ़ते रहेंगे, हम बढ़ ही रहे हैं। 8,000 फुल टाइम प्रचारक आरएसएस के पास है। 8,000 भैया, 8,000 आपके ऑफिस बेरर भी दे रहेंगे टाइम पास के लिए। द्विवेदी आरएसएस गुणगान ही करते रहेंगे सर। संजय द्विवेदी जी, आरएसएस संविधान विरोधी कैसे हो गए? सर मैं भी प्रवक्ता जी की बात सुन रहा था। संवैधानिक पद पे राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी संवैधानिक पद पे हैं। जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे सर, क्या आपकी डिबेट में शोभा देता है सर? अरे संविधान राजीव जी, प्रदीप जी, बोलिए द्विवेदी जी बोलिए। राजीव जी बताइए। बोला था सोनिया गांधी ने, चुप रहिए ना, मैं अभी बात नहीं टोका ना, मैं उसी में टोकता आपको। नरेंद्र मोदी जी को जब वो आप मेरी बात सुनिए, नरेंद्र मोदी क्या 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 वो भी मुझे पता है। कहीं मैं उसी बात कर लूं पहले? गुजरात में बहुत का सौदागर, मैं उसी बात कर लूं क्या? बहुत का सौदागर। प्रदीप जी को शांत करिए। बोले द्विवेदी जी बोले। जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की जा रही डिबेट में, ये क्या उचित है क्या? अगर 100 साल हो गए हैं तो मोदी जी कहते साहब मैं तो अपनी दम पे आया, मैं तो प्रधानमंत्री आरएस दम पे बना नहीं। अभी आपके गृह मंत्री जी मिलने जा रहे थे मोहम्मद भागवत जी से, उन्होंने नहीं मिले वो। मोदी जी कितने बार गए होंगे आरएस का, मुझे बता दीजिए। मोदी जी साफ साफ कहते हैं कि मुझे, अभी इन्हीं के थे जेपी नड्डा जी, जिन्होंने आरएस के बारे में क्या कहा था। आज ये पढ़ाई कर रहे हैं आरएसएस के बारे में। जेपी नड्डा जी ने क्या कहा था? अगर 56 साल अगर देश में राज्य किया कांग्रेस ने, आप 10 साल में इतने अहंकारी हो रहे हैं, इतने तानाशाही हो रहे हैं, इतने अंदर आपको अहम आ गया है कि मेरे समझ में नहीं आ रहा। अगर इतनी मजबूत आरएसएस थी आपकी, तो भैया 56 साल कांग्रेस ने राज्य क्यों किया? आप जिसकी बात करते हैं 1970 में
वो टोटल विपक्षी पार्टी इमरजेंसी के बाद एक हो गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह ने उन जनता दल को स्वीकार किया था और उसको मिलकर तब चुनाव लड़ा था। लेकिन 2.5 साल बाद क्या हुआ? 1980 में इंदिरा गांधी फिर आ गई, इमरजेंसी के बाद फिर आ गई वो। तो अगर इतनी शक्तिशाली है, इतनी ठीक है, तो मोदी जी क्यों नहीं बड़ाई करते? जेपी नड्डा जी क्यों नहीं बड़ाई करते? ये अमित शाह जी मिलने गए थे अभी महाराज में, क्यों नहीं मिले? देखिए असल में समस्या ये, क्योंकि इनको लगा कि महाराज चुनाव जो है वो आरएसएस ने जिता दिया। देखिए राहुल गांधी जी एक संवैधानिक पद पे है। अगर संवैधानिक पद पे प्रधानमंत्री जी हैं, अमित शाह जी हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उनके विषय में किस तरह की भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए थी? जब सांस्कृतिक और परंपराओं का ज्ञान भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता को नहीं है, तो मैं क्या आशा कर सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति है, उसके लिए किस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर हमारी सोनिया गांधी जी, जो राजीव गांधी की पत्नी थी, जिनको स्वीकार किया गया, वो आज पूरे देश की बहू है, उनके लिए क्या क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं? या प्रियंका गांधी इस देश की बेटी है, उनके लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? तो देखिए भारतीय सभ्यता, भारतीय परंपराओं, अहंकार में इतना डूब चुकी भारतीय जनता पार्टी, उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। भैया ये राज्य है, ये संस्था है। लोकसभा चुनाव में आपको पटकनी दे दी थी, 303 से 240 पे आप आ गए थे, 400 पार का नारा आप दे रहे थे, मैं तो नहीं दे रहा था। क्या हालत आपकी हुई? आज लंगड़ी सरकार अभी चल रही केंद्र में, परजीवी सरकार चल रही है। अगर आपको महाराष्ट्र में जिता दिया है तो आप इतना खुश मत होइए, ये जनता है, सब जानती है। वी कम टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम। द्विवेदी जी 1 मिनट में बोलिए कि बजट से आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं, मोदी जी के बजट से क्या अपेक्षा कर रहे हैं? जो हम अपेक्षा कर रहे हैं, बजट आम जनता के लिए होना चाहिए। जो जीएसटी में जो हमारी मूलभूत जरूरतें हैं, जिसपे जीएसटी लगी हुई है, वो हटना चाहिए। पेट्रोल डीजल पे जीएसटी होना चाहिए। जो स्वास्थ्य में हमारी दवाओं पे जीएसटी लगी है, उस पर हटना चाहिए। जो हमारे किसानों में ट्रैक्टर खरीदने में जीएसटी लगी है, वो हटना चाहिए। इन सब चीजों से जीएसटी हटनी चाहिए और आम जनता के लिए बजट बने, मेरी ये आशा है। वाघ साहब, what do you expect for the budget tomorrow? वाघ साहब, सर्वे सुखानि संतु, सर्वे संतु निरामया। So everything is going to be fine. Harshis, thank you. Wag Sahab, thank you so much. Dwivedi, Sanjay Dwivedi ji, very much. Thank you so much. Jonathan Sahab, very much. Thank you very much. As we end the program, as we always say, the preamble to the Constitution, we the people hereby resolve to constitute India's sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity. Justice that is social, economic and political, equality before the law and equal protection of rights. When you talk about equality, when you talk about freedom of speech, expression, faith, worship and belief, that is liberty. Freedom of speech, expression, faith, worship and belief, right to life, liberty and pursuit of happiness. And when you talk about fraternity, eternal brotherhood, believing the territorial and political integrity of the nation. And as we always say, that whichever party are all together, it's a fundamental duty of all parties together to see the foundations of the Constitution are safe and secure. Because if the foundations of the Constitution are safe and secure, the Republic survives, the people of the Republic survive. Click on to the, that's click on to Nation Now, the fastest growing channel, as we always say. That's the bell. Click on to Nation Now. That's it. That's all with Pradeep Nambiar. Nation Now will come again with more news from the center, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.